Welcome back to the channel, guys. Welcome back to Stock Explorer. Today is 4th October, another bad day for Nifty. Nifty was down 1%, around 235 points. Bank Nifty was down 2.75% and around 380 points. Another red day for the markets. Main reasons for the market being down वही है Iran and Israel war which is being escalated right now. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसा रीज़न तो ख़ास दिख नहीं रहा, बट ऐसा कोई पहले भी रीज़न नहीं दिख रहा था कुछ दिन हफ़्ते पहले जब मार्केट्स ऊपर जा रही थी, तो कोई पूछ भी नहीं रहा था कि ऊपर जा रही हैं। आई थिंक इट जस्ट गॉट एन एक्सक्यूज़ टू गेट करेक्टेड एंड व्हाटएवर levels we were telling you yesterday, same levels were tested very beautifully today as well. So as we told you, like 25,600 will be a strong resistance, which happened the same thing. And right from there, the market started falling badly. It tried to take a support around 25,100, went up a little bit, and then 5-10 मिनट में ही पूरी मार्केट ने अपना रंग दिखा दिया, जो कि था लाल, फुल पावर लाल. Now what we are expecting from here is, first of all guys, अगर अभी भी आपने अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक नहीं खरीदे हैं, इट्स स्टिल अ राइट टाइम. दिवाली की शॉपिंग सेल समझ के समझ लीजिए एंड बाय सम गुड रियली गुड स्टॉक्स rather than buying any other what do you call penny stocks or small cap stocks. This is good time to buy good stocks right now. Apart from that, 24,800, as I told you, will be a good support from here, and we are expecting the markets to bounce back from here all the way up. Let's see, what happened today in advanced decline ratio. Throughout the market, it was red. The only two stocks which were in green were Infosys and ONGC. तो आईटी ओवरऑल आईटी सेक्टर आज काफ़ी स्टेबल था कंपेयर टू ऑल दी अदर मार्केट्स, सारे सेक्टर्स के अलावा. एम वाज अ शॉकर फॉर मी बिकॉज कल ही एम के नंबर्स आए. थार रॉक्स की उनकी लॉन्च हुई है, 1,75,000 बुकिंग आई 60 मिनट में, एंड दिस इज व्हाट यू डिलीवर इन मार्केट. 3.5 ऑलमोस्ट 4% का डिक्लाइन था आज. आई थिंक एम जब 2800-2700 के लेवल के आसपास आएगा, that's a good base where you can start accumulating the stock again. बाय द वे, आज हम लोग ने अपने ग्रुप में, जो छोटा सा ग्रुप है उसमें हम लोग ने शेयर किया था टाटा मोटर्स टू बाय when the market fall, and let's see what happens on Monday. Tata Motors looks like a great buy right now, has been falling from past couple of weeks. We won't talk about the stock Tata Motors right now, but let's talk about the other thing which I was focusing was global index. अभी यूएस मार्केट में देख रहा था डाउ जोन्स एंड एस&पी, एवरीथिंग इज इन ग्रीन. 0.30% एंड 0.46% अबव है दोनों. नैस्डैक भी ऊपर है, ऑलमोस्ट 1% पहुंच जाएगा आज, मेरे को लग रहा है. यूरोपियन मार्केट्स, आई वाज एक्सपेक्टिंग देम टू गो रेड, बट वो भी ग्रीन में ही क्लोज हुए हैं. सो ओवरऑल होल वर्ल्ड मार्केट्स आर इन ग्रीन एक्सेप्ट इंडिया. एंड गुड थिंग इज, आइसिंग ऑन द केक गाइस, गिफ्ट निफ्टी अभी ग्रीन में है and we are expecting a positive or a gap up opening on Monday. Let's see what gift Nifty shows clues tomorrow, but अभी फिलहाल तो भाई green में ही है. The only negative news which was coming in कि भाई US will be supporting Israel and then they will be bombarding Iran and all that. But let's see. बोलते अभी ये सब बहुत ज़्यादा है, and nothing will be happening as of now because elections भी हैं US में, so probably they are just trying to scare off people and not put in the money. But I would say this is a great chance for you all to put in the money. आज जो हम लोग एक स्टॉक को थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स. ये एक ऐसा स्टॉक है जो शिप बिल्डिंग के बिजनेस में डील करता है. इट्स अ डिफेंस सेक्टर स्टॉक एंड इट्स अ पीएसयू स्टॉक एज वेल बिकॉज ये डिफेंस को केटर करता है. वेरी नाइस कंपनी विद अ मार्केट कैप ऑफ 19,000 करोड़. अभी रिसेंट में इसने हाई मारा था 2,800 रुपये का. 2,710 का तो इसका जुलाई का ही हाई है. वहाँ से ऑलमोस्ट 35-40% के आसपास गिर गिर के 1,660 पे आ गया है. करंट स्टॉक का पी है 51 का, बुक वैल्यू है 46 की. डिविडेंड यील्ड भी है, बट मीगर सी डिविडेंड यील्ड है. मेन चीज़ जो देखने वाली है वो है आरओसी 27% का, विच इज़ अ ग्रेट आरओसी फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस. 27% आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, विच इज़ अमेजिंग. पर गाइस, अगर आप लोग को ये सब टेक्निकल टर्म्स नहीं पता है, आरओसी, स्टॉक पी, बुक वैल्यू, then I'll be posting the videos one by one on each and every topic. So
जो भी एक नेसेंट स्टेज के इन्वेस्टर्स हैं या फिर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स, दे डोंट नो ऑल दिस. My main motive is to just motivate them and let them know what all these abbreviations and these words are about and what does it mean in the stock market too. So it makes it easier, and the journey of investing will be more easy for you as well. So I will try my best and make it more simplified. जितना इजी हो सकता है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बताऊंगा. सो आप दोनों के लिए, सबके लिए ही बेहतर हो. एक और चीज़ मैं जो सोच रहा था वो ये था कि स्टॉक का डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है, उसका वीडियो मैंने बना लिया है, वो मैं पोस्ट करने वाला हूँ. तो वो भी आप देख सकते हैं कैसे एक अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी एज सून एज पॉसिबल. ओके, लेट्स गो बैक टू द स्टॉक. गार्डन रीच शिप बिल्डिंग गाइस, इसका कॉम्पिटिटर है एक कोचिन शिपयार्ड. Both of them are almost around the same price, but Garden Reach has a PE of 51%. That's the negative thing. You must be thinking why I'm showing you this one. Market cap भी कम है. But the main important point is इनका ROC आप देखिए 27% का है, 21% का है. उसके अलावा सेल्स क्वार्टर के भी नंबर्स देखिए आप, 1000 करोड़ के हैं और 709 करोड़ के हैं. लेट्स सी देयर क्वार्टर रिजल्ट. जून क्वार्टर में अभी इनका रिजल्ट आने वाले हैं, एंड द मार्केट आर एक्सपेक्टिंग दीज रिजल्ट्स टू गो अप बिकॉज दे रिसेंटली रिसीव्ड कपल ऑफ ऑर्डर्स इनका, प्रॉब्ली इन द मंथ ऑफ अगस्त एज वेल. सो सेल्स जो इनकी रहती है ऑलमोस्ट अराउंड 300 करोड़ थी 2021 में, जो बढ़ के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ के आ गई 1000 करोड़ जून में, विच इज़ अ ग्रेट नंबर. 3 टाइम्स इनकी सेल्स बढ़ गई हैं. एक्सपेंसेस भी उसी अकॉर्डिंग 3 टाइम्स बढ़ेंगे, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट इज द मेन कॉस्ट फॉर देम. सो जितना आप ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे, उतना मटेरियल यूज़ होगा, सो कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से. तो वॉल्यूम ऑफ स्केल्स का बिज़नेस है. द मोर वॉल्यूम दे प्रोड्यूस, द मोर प्रॉफिट दे मेक. सो इट्स अ फेयरली नेसेंट इंडस्ट्री. अभी भी इंडिया में शिपिंग इंडस्ट्री बहुत छोटी है. अभी भी कुछ ही कंपनीज़ हैं जो कैटर कर रही हैं, उसमें से एक जीआरएससी है और एक मैज़गाँव है और एक कोचिन शिपयार्ड है. सो कुछ ही कंपनीज़ हैं, एंड मार्केट अभी बहुत बड़ी है. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से $20 बिलियन की कंपनी है शिपिंग की. So which is a big market, and India is yet to achieve their number in that market again. Let's go to the profit after tax, which comes to 87 crore. So from last quarter, अभी मार्च के क्वार्टर से जून के क्वार्टर में अराउंड 20-25% का डिक्रीज रहा है इनके प्रॉफिट में. एंड still after the June quarter, the share hit high in July, which is here in the month of July. So 2700 का रिजल्ट देखने के बाद भी accumulation हुआ है. So it means there is something which is big happening in the stock, and big investors have put in their money. So let's see who all have invested in the stock as well. So in FIS, you can see from 2021, from 1.1 percentage, they have increased all the way up to 3.9 percentage. So almost 3 times बढ़ चुके हैं FIS का इन्वेस्टमेंट इसमें. DI इसका काफ़ी कम हो गया, इसमें 12% का था, which have decreased to 3.2 percentage. दो नाम आते हैं बड़े DIS में, एक HDFC ट्रस्टी का और निपॉन की लाइफ ट्रस्टी का. मतलब जितना भी होल्डिंग है इन्हीं दोनों के पास है मेजॉरिटी. पब्लिक में सिर्फ रमेश दमानी जी के पास है, वन ऑफ द मोस्ट एलीट एंड रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट इन इंडिया. रमेश दवानी जी के पास लंबे टाइम से तो नहीं, बट 2021 से होल्डिंग है 1.09 की, और जिन्होंने उसको मेंटेन करके रखी हुई है. सो लेट्स सी कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिंग्स आर हैपनिंग इन दिस स्टॉक. तो रिसेंटली अभी बल्क में परचेजेस हुई हैं यहाँ पे 5 जुलाई के आसपास, जब ये मार्केट का हाई था. And these purchases were done in 2710 price. Around 5,68,000 shares were bought and 6,09,000 shares were sold on the same day, just on the meager difference of 13 rupees. So you must be thinking like these are HFT traders. भाई ये लोग खरीदते हैं 3 रुपए 13 रुपए में बेच देते हैं, 5 लाख शेयर्स खरीदे, then they probably made 50 lakhs. यू कैन बी राइट, बट इनका मेन पर्पस ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का सिर्फ यही नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट दीज ट्रेडर्स लाइक ग्रेविटॉन एंड HRTI एंड अदर HFT जितने भी देख रहे हैं, इनके सिक्योरिटीज, ये आप देखिए एक ही दिन में खरीदते हैं, दूसरे दिन में बेच देते हैं या उसी दिन बेच देते हैं. इनका पर्पस खरीदना बेचने का सिर्फ 10 रुपये 5 रुपये अपने लमसम क्वांटिटी पे कमाने का नहीं है. These people are buying the stock for someone else. Suppose somebody wants to buy and start accumulating that stock,
एंड दे डोंट वांट द नेम टू कम आउट। सो ये लोग बाय करते हैं उन लोग के लिए। आपने देखा ना, अभी रमेश धमानी जी ने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है 2021 से लेके कितनी बार उन्होंने परचेज किया। लेट्स आई शो यू बैक वंस अगेन। रमेश धमानी जी ने रिसेंट में अभी खरीदा था 2021 में, एंड उसके बाद से उन्होंने अक्यूमुलेट करके वहीं रखा है। बट आई डोंट सी एनी नेम ऑफ रमेश धमानी इन दी buying list anywhere. These people are the one who buy it for them, people like them. I'm not saying it's for Ramesh Damani ji. I'm saying किसी के लिए भी, for any big investor, they buy it for them and then they transfer the shares off market to them. So basically they are just a third party mediator who buys the stock ताकि उनका नाम ना आए. So that's the purpose for them. And when these kind of accumulations are happening at the highest price, 2,710, then we can expect the stock to go back to the same price. Let's check the chart of GRSC once. Like what is the chart showing? Let's check. इसको वन डे पे डालते हैं. कुछ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं. ओके, विल गो एंड लुक इनटू द वॉल्यूम्स. रिसेंट में आप वॉल्यूम्स देखिए, जो हाई आए हैं वो इसी प्राइस के रेंज के आसपास आए हैं, विच इज़ अराउंड 1710. यहीं से वॉल्यूम आने स्टार्ट हुए हैं. आप देखिए वॉल्यूम्स यहीं से बढ़े हैं और उसके बाद यहाँ से बढ़ते ही गए हैं. Now this area, which is here, looks like a strong accumulation zone. आप देखिए यहाँ से अगस्त से लेके अभी मार्केट पूरी डाउन हो गई है. ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तो निफ्टी में ही आपके गिर गए हैं. स्टिल द स्टॉक हैजंट फॉलन दैट मच. Now this is a strong support zone from where the stock will should go up. So here, which is 1659 is first support. अगर ये भी नहीं रुकता है, then the other support will be this price over here, which is 1480, which is around 1500 rupees, and the last support, which I think will be 1190. But I would suggest start buying small quantities here, and then we can really expect these stock to at least touch the highs of 2700 in the coming year. So this is our target. So look into the stock. This is a quick recommendation from my end. Nothing to buy or sell, just for the educational purposes. And rest apart, we are expecting the markets to open in green. So all the best to everyone. Tomorrow I'll be posting a video, as I told you, to how to open a डीमैट account, guys. So आप उसको देखिए and अपनी investing journey को शुरू करिए. And I'll also put in the link for you all to open the डीमैट account in that too. उसके अलावा आपको कोई और ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक हो जिसके बारे में मैं थोड़ा सा क्विक एनालिसिस करूं, put in the comment, guys, and do subscribe and like the video. And thank you once again for watching. Have a wonderful weekend. Thank you.